नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों में। संघ प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के 65वें जन्मदिवस पर प्रदेशों में विविध कार्यक्रमों का हुआ था आयोजन। दमन पुल दुर्घटना की 18वीं बरसी पर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। दादरा हवेली के मसार टूटूएस प्लास्ट नामक कंपनी में 22 साल के युवक ने की खुदकुशी। अब समाचार विस्तार से। नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में संघ प्रदेश 3D में महिला आत्मनिर्भर अभियान के प्रणेता प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन का हुआ था आयोजन। सभी महिलाओं ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को जन्म दिवस की दी हार्दिक शुभकामनाएं। दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के 65वें जन्म दिवस को लेकर आज दमन के नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में संघ प्रदेश 3D में महिला आत्मनिर्भर अभियान के प्रणेता को जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं हेतु दमनवाड़ा जिला पंचायत के सदस्य फाल्गुनीबेन पटेल द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर फाल्गुनीबेन पटेल ने बताया कि प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के 5 साल पूर्ण होने पर और आज ही जन्म दिवस हो, उसके समय में उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं, प्रशासक ने महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए हैं, जिसके चलते ये शक्य हुआ है। साथ ही जो मार्गदर्शन मिला, मशीनरी दी गई और आने वाले दिनों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मशीनरी दी जाएगी, जिसका आभार व्यक्त करते हुए सभी महिलाओं की ओर से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के जन्मदिवस की बधाई देकर सपना जो भी हो वो साकार हो और सफलता के सर पर आगे ही आगे बढ़ते जाएं, ऐसी शुभेच्छाएं दी गई थी। नहीं चाह थे गाने हैं, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं। अब कोना कोना अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। નમસ્તે। ફર્સ્ટ તો હું અહીંયા મારી જેટલી પણ બહેનો પધારેલી છે, મીડિયાથી જે ભાઈઓ આવેલા છે, અમારા જે સરપંચશ્રી પધાર્યા છે મુકેશભાઈ ગોસાવી, એમનું તહે દિલથી બધા લોકોનું સ્વાગત કરું છું। અને આજનું અમારું જે મહિલા સંમેલન છે, જે દમણની અંદર જેટલી બી અમે એસએચજી ગ્રુપો છે, એ એક સાથે આજે મહિલાઓનું સંમેલન છે। એનું એક ઉદ્દેશ્ય છે કે આજે અમારા 3Dના માનનીય પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ પટેલજીનો જન્મદિવસ છે અને એમના 5 વર્ષના જે સુશાસનના જે પીરિયડ, 5 વર્ષનો જે સમયકાળ છે, એમણે એટલા સારા કાર્યો કર્યા છે, તો એ જ 5 વર્ષ પણ કમ્પ્લીટ થયા અને આજે જ એમનો જન્મદિવસ પણ છે। તો એના નિમિત્તે અમે આજે મહિલા સંમેલન રાખ્યું છે અને એનું મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે કે આજે જે અહીંયા બહેનો જે એકત્રિત થઈ છે, એ ફક્ત ને ફક્ત માનનીય પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ પટેલના જે પ્રયાસ છે બહેનોને આત્મનિર્ભર બનાવવાના, એનાથી જ આ પોસિબલ બન્યું છે। કેમ કે અમને નિરંતર માર્ગદર્શન મળતું રહ્યું છે કે બહેનોને તમે આ રીતથી પ્રોત્સાહિત કરી શકો, તમે આ રીતથી એમને આગળ વધાવી શકો અને એમના માર્ગદર્શનથી જ આજે અમે આટલું મહેનત કરી સફળ થયા છે, બહેનોને અવેર કર્યા
ગ્રુપો બનાવ્યા અને પછી બહેનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલે મશીનરી પણ બહેનોને આપી છે અને એનાથી બહેનો આજે ઉદ્યોગ કરતી થઈ ગઈ છે અને આત્મનિર્ભર બની ગઈ છે. બાકીની જે વિલેજની જે બહેનો છે એમના માટે પણ માનીને પ્રશાસકશ્રીએ ચિંતા કરી છે અને એમને પણ મશીનરી મળશે, એમને પણ દમણની હોટેલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ગૃહ ઉદ્યોગો મળશે અને દમણની બધી જ બહેનો આત્મનિર્ભર બને એમના માટે માનીને પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈએ ચિંતા કરી છે અને આવનાર દિવસમાં 3Dના બધી જ બહેનો આત્મનિર્ભર બની જશે એવા અમારા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી તેમજ અમારા લોકલાડીલા માનીને પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલનું એમ છે અને સ્વપ્ન છે. એ સ્વપ્નને પૂરું કરવા માટે જ બસ અમે આજે આટલી મહેનત કરીએ છીએ અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે આજે જ્યારે અમારી દમણની આટલી બધી જાગૃત મહિલાઓ જ્યારે એકઠી થઈ છે ત્યારે મને પૂરો વિશ્વાસ થાય છે કે અમારા માનીને પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલે જે પગલું પાડ્યું છે બહેનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે એમાં અમે અવશ્ય સફળ થઈશું. બસ આ જ ઉદ્દેશ્યથી અમે આજે એમનો જન્મદિવસ પણ મનાવીએ છીએ અને ખૂબ જ ઉત્સાહથી આજે એમના જન્મદિવસની સાથે બહેનો પણ ખૂબ જ ઉત્સાહથી અહીંયા જાતે રેડી થઈને આવી છે અને એમનો હું ખૂબ જ આભાર વ્યક્ત કરું છું યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો અને માનીને પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલનો તેમજ અમારી પ્રશાસનની જે અધિકારીઓની જે ટીમ છે એમનો પણ હું તહેદિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું કેમ કે બહેનોને મશીનરી વગેરે અપાવવામાં પણ એમનો એટલો જ સહફાળો રહ્યો છે અને અમારા જે પાર્ટીના પ્રેસિડેન્ટ છે દીપેશભાઈ તંડેલ તેમજ અમારા પ્રભારી વિજય રાહટકરજી મેડમનો પણ હું તહેદિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આજે એમના માર્ગદર્શનથી હું અહીંયા સુધી પહોંચી છું. ખૂબ ખૂબ आभार. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर सिलवासा की रेड क्रॉस सोसाइटी के दिव्यांग स्कूल में सिलवासा नगर पालिका के प्रमुख के साथ कमेटी के सभ्यों द्वारा केक काटकर मनाया गया जन्म दिवस. दादरा नगर हवेली दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के 65वें साल में प्रवेश होते आज रोज सिलवासा नगर पालिका प्रमुख राकेश सिंह चौहान और उप प्रमुख अजय भाई देसाई, काउंसिलर किशन परमार, कमेटी के सभ्यों के साथ मिलकर सिलवासा में आई हुई रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित दिव्यांग स्कूल में जाकर बच्चों के साथ दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन को मनाया गया. इसी के साथ सभी बच्चों को स्वादिष्ट भोजन भी करवाया गया था. कार्यक्रम के चलते हर एक बच्चों के चेहरे पर खुशी छाई हुई देखी गई. इसी के साथ नगर पालिका प्रमुख राकेश सिंह चौहान ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल का जीवन स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और उन्हें सभी कार्यों में सफलता मिले, जिसके लिए ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे, ऐसी शुभेच्छा दी गई थी. थोड़ा पछाड़ी से कैसे एक एक करके आप दमन में 28 अगस्त 2003 के रोज हुई ब्रिज दुर्घटना में 28 स्कूली छात्रों, एक टीचर और राहदारी के साथ 30 लोगों की पानी में डूब जाने से हुई थी मौत. तो मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हर साल की भांति इस साल भी स्कूल द्वारा दी गई श्रद्धांजलि. 28 अगस्त 2003 का दिन दमन के लिए काला दिन था. उस दिन
नानी दमन और मोटी दमन को जोड़ने वाले ब्रिज पर से मोटी दमन की अवर लेडी ऑफ फातिमा स्कूल के बच्चे दोपहर को स्कूल में छुट्टी होते अपने घर जा रहे थे कि अचानक ब्रिज नदी में टूटकर गिर जाते 28 स्कूली छात्रों के साथ एक शिक्षक और एक राहदारी सहित 30 लोगों की पानी में डूब जाने से मौत हुई थी। तब से लेकर आज दिन तक 28 अगस्त को काला दिन माना जाता है। तो मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हर साल अवर लेडी ऑफ फातिमा स्कूल के बाहर मृतक बच्चों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती हो। इस साल भी बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। साथ ही स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई थी। इसके अलावा प्रदेश के सांसद लालू पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल, जिला प्रमुख एसपी दमनिया, यूथ एक्शन फोर्स के प्रमुख उमेश पटेल सहित अन्य लोगों ने बच्चों को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही इस काम में जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और बच्चों को इतने साल बीत गए हो अब न्याय मिले, ऐसी इच्छा व्यक्त की थी। दादर नगर हवेली के मसाट आउटपोस्ट के पास आई हुई टूटू स्प्लैश नामक कंपनी में एक 22 साल के युवक ने की खुदकुशी। दादर नगर हवेली के मसाट आउटपोस्ट के पास आए हुए टूटू स्प्लैश नामक कंपनी में एक 22 से 24 वर्षीय युवा ने खुदकुशी कर मौत को गले लगाया। खुदकुशी करने वाला सुनील राम कुमार यादव मूल निवासी बिहार पटना जिले का होने का बाहर आया था। सुनील राम हर रोज के भांति आज भी समय पे कंपनी में काम करने के लिए आया था। इस कंपनी में प्लास्टिक के ढक्कन बनाने वाले मोल्डिंग मशीन बनाया जाता है। पिछले 3 महीने से सुनील राम काम कर रहा था। सुनील राम दोपहर को खाना खाने के लिए गया था, जिसके बाद उनके दोस्त खाना खाने के लिए गए थे। जब वापस आए तो देखा कि सुनील राम ने खुदकुशी कर ली थी। कामदारों ने तुरंत ही घटना की जानकारी कंपनी के मालिक को देकर तुरंत ही पुलिस थाने में जानकारी देते मसाट आउटपोस्ट के असिस्टेंट पीएसआई नरेंद्र सिंह राठौड़ और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। घटना के बारे में सिलवासा मुख्य पुलिस थाने के इंचार्ज पीआई सब असिस्टेंट देवाशिया को जानकारी देते तुरंत ही पीएसआई छायाबेन और स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचे थे और मृतक के शव को सिलवासा के कॉटेज अस्पताल में पीएम के लिए भेजा गया था। आगे की जांच मसाट आउटपोस्ट की पुलिस ने शुरू की है। संघ प्रदेश दमन में सही यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था। उसी के चलते शनिवार के रोज टैक्सी एसोसिएशन दमन द्वारा महिलाओं के लिए टैक्सी की सवारी मुफ्त में करवाई गई। संघ प्रदेश दादर नगर हवेली दमन दीव में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत सही यात्रा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हो। 24 अगस्त से 28 अगस्त तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो उसी के चलते दमन में टैक्सी यूनियन एसोसिएशन द्वारा महिलाओं के लिए शनिवार के रोज वापी से दमन और दमन से वापी आने जाने के लिए टैक्सी की सवारी मुफ्त में करवाई गई थी, जो दमन टैक्सी एसोसिएशन के प्रमुख चंदा भाई टंडेल द्वारा की गई थी और महिलाओं ने भी टैक्सी सवारी का मुफ्त में लाभ उठाया था। થાય છે દેશના આઝાદી પછી અને અમૃત મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે દમણમાં, જ્યારે
અમે પણ ટેક્સી એસોસિએશન તરફથી એક દિવસ માટે મહિલા ફ્રીનો એક દિવસ રાખેલો છે આજે, જેના પાસે ભાડું નથી લેવાતું. અને અમારા માટે એક વાત આજે 5 વર્ષ પ્રશાસક સંહિતા બી પૂરા થાય છે અને અમને બી અહીં આગળ 20 ટેક્સીઓ જે અમને ફ્રીમાં મૂકવાની અમને જે પરવાનગી અને જે અમને આપેલી છે એ બધા અમે એનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અમે આજના દિવસમાં સાંજ સુધીના માટે નથી કરતા. नानी दमन विश्वकर्मा मंदिर के सामने सही यात्रा कार्यक्रम अंतर्गत डेंटल कॉलेज द्वारा निशुल्क डेंटल चेकअप कैंप एवं SBI बैंक कैंप का हुआ था आयोजन. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत सही यात्रा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हों. 24 अगस्त से 28 अगस्त तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, तो उसी के चलते दमन में नानी दमन विश्वकर्मा मंदिर के सामने युवा, बुजुर्गों और छात्रों के लिए निशुल्क डेंटल कॉलेज के सहयोग से डेंटल चेकअप कैंप एवं SBI बैंक के सहयोग से SBI बैंक द्वारा 5 लाख तक की मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया लोन, स्टार्टअप इंडिया लोन और छात्रों के लिए बैंक में खाते खोलने के लिए एवं भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का कैंप रखा गया था. पाँच साल पूर्ण होने में प्रशासन के सह यात्रा बनाई जा रही है और अलग अलग वर्ग के लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, चाहे प्रशासन हो चाहे आम व्यक्ति हो. आज हमने विश्वकर्मा मंदिर में 28 तारीख को एक कैंप रखा है, जहाँ पे डेंटल चेकअप फ्री में कराया जाएगा और साथ ही साथ में बैंक के कर्मचारी, स्टेट बैंक के, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं. और जो भी लोन है, जैसे स्टैंडअप है, स्टार्टअप है, अकाउंट ओपनिंग है, मुद्रा लोन है, वो किस तरह मिले, किस तरह ईज हो गए, क्या आपको एग्रीमेंट लाना है. अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल का सब्सिडी बांध के दे देंगे. 11 साल का है तो 11 साल का हफ्ता होगा. 1 से 10 लाख, 10 से 1 करोड़, जिसको भी एंटरप्रेन्योर को लाभ लेना है, युवा है, स्टैंडअप करना चाहता है आफ्टर 12, उनके लिए भी ये कैंप लगाया गया कि बैंक कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, आप उनका लाभ लीजिए. और साथ ही में 27 तारीख को भी कैंप किया गया था मोदी दमन में इसी तरह. और हमारा जो वैदिक डेंटल कॉलेज है, उन्होंने भी वहाँ पे एक कैंप रखा है 27-28 तारीख को. फ्री में वहाँ पे भी ट्रीटमेंट होगा, चेकअप होगा, फ्री ट्रीटमेंट चेकअप देंगे. और जो महिलाओं की बात आती है तो हमारे टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चंदा भाई, वाइस प्रेसिडेंट उमेश भाई, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया और उन्होंने कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं 28 तारीख को हम वापी से दमन और दमन से वापी उनको लेके जाएंगे, उनसे कोई भी किराया नहीं लेंगे. उनका भी शुक्रगुजार हो. तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हम उत्सव बनाएं और आप सभी इस कैंप का लाभ लें. धन्यवाद. વૈદિક ડેન્ટલ કોલેજ અને રિસર્ચ સેન્ટર તરફથી અમે પબ્લિક હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમ અહીંયા ફ્રી ડેન્ટલ ચેકઅપનું કેમ્પ આજે આયોજિત કર્યું છે. 2 દિવસીય કેમ્પ હતું, જેમાં ફર્સ્ટ કેમ્પ અમારું 27 તારીખે ગઈકાલે મોટી દમણમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું અને આજે અમે નાની દમણમાં 28 તારીખે બીજા એક કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે, જે અમે ફ્રી ડેન્ટલ ચેકઅપની સેવા આપી રહ્યા છીએ. તો બધા લાભાર્થીઓને અમે ડિસ્કાઉન્ટ પણ ઓફર કરીએ છીએ અને તેમને તમામ જાણકારી આપવામાં આવે છે દાંતની પ્રોબ્લેમ વિશે અને તેના ઉપચાર વિશે પણ. તો બધા લાભાર્થીઓને આવીને ડેન્ટલ ચેકઅપ કરાવવા માટે વિનંતી. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा संकल्प दिवस मनाया गया, जिसमें विविध प्रकल्पों का प्रशासक के हाथों किया गया उद्घाटन. दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल की अध्यक्षता में सही यात्रा विचार से परिवर्तन अंतर्गत संकल्प दिवस को कला केंद्र सिलवासा में मनाया गया, जिसमें विविध प्रकल्पों का प्रशासन के हाथों उद्घाटन किया गया.
जिसके बाद त्रिदिवसीय कार्यक्रम में सहयोग देने वाले उद्योगपतियों, विविध संस्थाओं के प्रतिनिधियों और स्कूली छात्रों को सम्मानित भी किया गया था। इस अवसर पर प्रशासक ने संबोधन में बताया कि अपने प्रदेश के विकास के लिए हर एक व्यक्ति का सहयोग आवश्यक है। प्रशासन की टीम, अधिकारियों, कर्मचारियों टीम वर्क बनाकर काम कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, प्रशासक के सलाहकार AK सिंह, दमन दीव सांसद लालू पटेल, पालिका प्रमुख राकेश सिंह चौहान सहित अधिकारियों और पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। प्राप्त करने वाली छात्रा है और अंत में લેવાનો એ આપણી ફરજ બને. સાહેબ આજે વિકાસ કર્યો, ઘણાની માનસિકતાઓ હતી રોડ આ અમારી જગ્યા, પણ 10.5 મિનિટ તો પહેલા અસલ આપણે ગોવા સાથે હતા ત્યારે દમણમાં હતું જ દીવમાં 10.5 મિનિટ ત્યારે કોઈ એક ગામમાં એકાદ ગાડી હોય, એકાદ બસ આવે અઠવાડિયે, એકાદ બાઇક હોય, એવું હતું ચાલતું તો આવડી હતું. પણ જેમ જેમ વિકાસ થતો ગયો તેમ તેમ એક ઘરમાં 5 ભાઈ તો 5 બાઇક હોય, ગાડી હોય, સાયકલ હોય, બધું રોડ પર જ જવાનું છે. એટલે એમાં તો કોમ્પિટિશન કરવાનું નહીં, જે માગે તે આપી જ દઉં, સામે ચાલના પણ ભાઈ રોડ બનાવો ચાલુ જ પડે. આ નહીં બનાવવાનું, આ અમારી જગ્યા અમારે કોઈ લઈ જવાનું નથી, પણ આ બધું એ રહી જશે. એ તો પ્રભુભાઈની ઘરે લઈ જવાના, એ તો નંદરભાઈને આપવાના, એ તો અમને આપી જવાના. એ આપણી જનતા માટે, એ ટુરિસ્ટ લોકો માટે. આપણે ટુરિસ્ટ પ્લેસ બંને આ દીવ અને સેલવાસા સ્માર્ટ સિટી, પણ સાહેબને સ્માર્ટ સિટીની જરૂર નથી પડવા લીધી સાહેબે કોઈને. આપણું દમણ જેવું સ્માર્ટ સિટી છે, પણ સ્માર્ટ સિટીની બરોબર કરી નાખ્યું બધું જ. સ્માર્ટ સિટીની કોઈ જરૂર નહીં મળે. મહેનત રાત દિવસ મહેનત સાહેબે કરી. અહીંથી 10-13 કલાક થાય સાહેબને એમાં घर जाओ माटे वतन जाओ। पिछले 2 वर्षों में हमारे प्रशासक महोदय और उनकी तमाम टीम, जिसमें मेडिकल टीम, प्रशासनिक टीम और फोर्सेस ने जिस तरह से प्रदेश के लोगों की और औद्योगिक लोगों की सेवा की, वो एक बहुत सराहनीय काम है। मैं अपने औद्योगिक जगत के मित्रों की सब तरफ से उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं। साथियों, इन सब चीज़ों को और बारीकी से हम देखें तो ये ज्ञात होता है कि हमारे संघ प्रदेश पे पिछले 5 वर्षों से ईश्वर की एक कृपा दृष्टि रही है, और साथ ही साथ एक महान विशेष व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री श्री हैं, उनकी भी विशेष कृपा हमारे संघ प्रदेश पे बनी। उसी का ये परिणाम है कि उन्होंने एक बहुत ही कर्मठ, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्तित्व के धनी इंसान को हमारा प्रशासक नियुक्त किया, और आज वो हमारे प्रशासक के तौर पे हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। साथियों, इसी कड़ी में मैं आप सब लोगों को एक और अवसर की याद दिलाना चाहूँगा कि इसी माह में हमारे प्रशासक महोदय का जन्मदिवस भी आ रहा है। तो मैं अपने तमाम उद्योग के मित्रों के साथियों की तरफ से अपने प्रशासक महोदय की लंबी स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं, और इसी आशा के साथ कि उनकी ये सह यात्रा, उनका ये साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे, और उसी विश्वास के साथ कि उन्नति का एवं विकास का जो मार्ग हमारे प्रशासक श्री ने हमारे साथ लिए चुना है, वो हमको और नए नए आयामों तक पहुंचाए। धन्यवाद। जय भारत। वो ये दर्शन, प्रदर्शन नहीं, दर्शन પણ એનાથી વિશેષ આજનો દિવસ મારા અધિકારીઓને અભિનંદન આપવા છે। આજના દિવસનું નામકરણ જે છે એ પણ જવાબદેહી આગળ કેટલી નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવાની છે, શું ધ્યેય સાથે આગળ વધવાનું છે એ નક્કી કરવાનો દિવસ પણ સંકલ્પ દિવસ તરીકે જ કર્યો। આજથી આરામ કરવાનો નથી, આજથી સંકલ્પ કરવાની શરૂઆત કરી છે। સુંદર
સંકલ્પ કરવાના વિચાર સાથે આજના દિવસનો નિર્ણય કર્યો છે. મિત્રો આખા મારા અથવા તો મારી ટીમનો સાથે ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, આ વિસ્તારના સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, તમામ લોકોના સહયોગથી આપણને કંઈક કરવામાં અનુકૂળતા થઈ છે. પણ આ 5 વર્ષની જર્નીનો વિચાર કરીએ તો એનો 3 ડિવિઝનમાં જરા બાયફર્કેટ કરું. પ્રથમ સંઘર્ષ, આ 5 વર્ષની યાત્રા એને 3 ભાગમાં વહેંચ્યું છે. તો પ્રથમ સંઘર્ષ, બીજો સમજણ હતી અને એના પછી ત્રીજો સફળતા. એટલે સંઘર્ષ, સમજણ અને સફળતા આ 5 વર્ષની જર્ની જે છે એનો એક નિચોડ છે. સહજ વાતો કરવી છે કે ભારે ભાષણ કરવાનો આજે કોઈ ઈરાદો બી નથી, મૂળ બી નથી. મિત્રો અહીંયા 5 વર્ષનો મારા જીવનનો મહત્વપૂર્ણ કાર્યકાળ એક અજાણે પ્રદેશમાં सिलवासा के नरोली स्थित बिलोसा कंपनी से माल सामान की आड़ में ले जा रहे शराब से भरे हुए टेम्पो को बगवाड़ा टोल नाके से बलसाड़ एलसीबी पुलिस ने पकड़ा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गुजरात में शराब की तस्करी के लिए शराब तस्करों द्वारा कई सारी आजमाइशें की जाती है। नए नए पैतरे आजमा कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर शराब तस्करी करने का प्रयास करते हैं। तो वहीं गुजरात पुलिस द्वारा भी शराब बंदी के चलते सख्त जांच बाज नजर से की जा रही हो। पुलिस को जानकारी मिली कि टेम्पो में शराब भरकर सूरत की ओर ले जाया जा रहा है। उसी जानकारी के चलते बलसाड़ एलसीबी पुलिस पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान सिलवासा के नरोली स्थित बिलोसा कंपनी से माल सामान के अवेज में शराब से भरे गए टेम्पो नंबर GJ19X6141 को बलसाड़ एलसीबी पुलिस ने बगवाड़ा टोल नाके पर रोककर टेम्पो में जांच करते अंदाजित 8 से 10 लाख का शराब का जत्था मिलते पुलिस ने शराब के जत्थे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उमरगांव तहसील के संजान गांव में पिछले 2 सालों से बनाए जा रहे ब्रिज निर्माण का काम चल रहा है कछुए की गति से। इसी के चलते वाहन चालकों और राहदारियों को भुगतनी पड़ रही है परेशानियां। उमरगांव तहसील के संजान गांव में पिछले 2 साल से ब्रिज बनाने की शुरुआत की गई थी, पर कछुए के भांति काम चल रहा हो। आज दिन तक ब्रिज का काम पूर्ण नहीं होते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक तो और भी मुसीबत झेल रहे हैं और अब तो कोरोना के केसों में थोड़ी कटौती आते स्कूल कॉलेज भी खुलने लगी है। ऐसे में यहाँ पर आई स्कूल से बच्चे जब छूटते हैं तो स्कूल के वाहनों और अन्य राहदारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जवाबदेही तंत्र द्वारा ब्रिज की इस समस्या को लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाए, ऐसी जोरों से आवाज उठ रही है। तो अब देखना रहेगा कि ब्रिज का काम कब पूर्ण किया जाता है। वहीं दूसरी ओर ब्रिज निर्माण कार्य से रास्ते पर बड़े बड़े खड्डे भी पड़ जाने से रास्ते पर से आवागमन करते लोगों को काफी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। ऐसे में जवाबदेह तंत्र खड्डे भरने का काम त्वरित करे वो आवश्यक बन रहा है। સમસ્યા છે સાહેબ, આ બ્રિજ બનવાનું શરૂ થયું ને ત્યારથી અમને સંજાણ ખાતે લગભગ 2 વર્ષ નીકળી ગયા. અમારે હવે આ સ્કૂલ પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે. સ્કૂલના અંદરથી છોકરાઓ બચ્ચાઓ બહાર નીકળે છે અને આ એટલા બધા ખાડાઓ પડી ગયા છે કે વાહનો અવારનવાર આવીને ઊભા થઈ જાય છે, અટકી જાય છે અને 4-5 વખત તો એક્સિડન્ટ પણ થઈ ગયા છે. અમે ઘણીવાર આ લોકોને રિક્વેસ્ટ પણ કરી છે તો છતાં ખાડા પણ પૂરાયા નથી. वापी की हरिया एलजी रोटरी अस्पताल में वापी के रहने वाले 67 साल के बुजुर्ग की बेहद जटिल और गंभीर हृदय की सर्जरी की गई।
वापी में रहने वाले मरीज श्री सदानंद अंजन उम्र वर्ष 67 को 3 अगस्त के रोज दिल का दौरा पड़ा था और वापस 10वें दिन एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा और दिल के बाएं और दाएं भाग के बीच एक बड़ा छेद विभाजन दीवार में गिर गया। इसे पोस्ट एमआई वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो सीनियर कार्डियक सर्जक डॉक्टर कल्पेश मलिक ने उनकी जांच की, जिन्होंने मरीज की तत्काल सर्जरी करने की सलाह दी, क्योंकि यह सर्जरी बेहद जोखिम भरी थी। इसलिए रिश्तेदारों को जटिलताओं और मौत की संभावना के बारे में बताया गया और 17 अगस्त की रात के हरिया एलजी रोटरी अस्पताल में सर्जरी की गई। 4 घंटे की लंबी सर्जरी की गई, जिसमें दाएं और बाएं दिल के बीच की दीवार को फिर से बनाया गया था और बाईपास सर्जरी की गई। बाद में मरीज को स्थिर स्थिति में CTVS ICU में स्थानांतरित कर दिया गया और 23 अगस्त 2021 को छुट्टी दे दी गई। तो डॉक्टर कल्पेश एस मलिक ने कहा कि एमआई वेंटिकुलर सेप्टल दोष एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन बेहद क्रिटिकल और जटिल सर्जरी है, पर ये मरीज के परिवारजनों ने तत्कालिक सर्जरी के लिए परमिशन देते सफल बेहद और गंभीर हृदय की सर्जरी पर पीड़ित को नवजीवन बख्शा गया। सदानंद अंचन नाम के जो हमारे एक केयर पेशेंट है जो 68 इयर्स के हैं और उनको एक के बाद एक 2 बहुत ही मैसिव हार्ट अटैक आए थे और इन दोनों ईयर पे अटैक के ईयर कारण जो उनके राइट और या लेफ्ट साइड के हार्ट के जो बीच में पे पार्टीशन का जो पर्दा होता है तो उसमें यार पे पहले तो यार छेद हो गया था और फिर वो वाला छेद पे बड़ा होता गया और क्या है ना कि पर्दा मतलब कि फटता चला गया था। ये जो कॉम्प्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं पोस्ट मायोकार्डियल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ये वाला पे कॉम्प्लिकेशन यार 250-300 यार अटैक आएंगे तो उनमें से एक में होता है और ये वाला पे प्रॉब्लम यार अटैक के 7वें या फिर 8वें दिन के बाद होता है और यार भाई इसमें यार भाई मरीज ना अचानक चल बसता है। अगर हमने सर्जरी ऐसे स्टेज में नहीं करी तो पेशेंट का डेथ रेट इज़ ऑलमोस्ट 90% और मान लो कि वे सर्जरी करी तो भी वे 50-50 चांस होता है कि वैसे पेशेंट बचते हैं या फिर नहीं बचते करके। तो इनकी यार पे सर्जरी हमने 17 अगस्त की रात को करी थी हमने। इनकी सर्जरी 6 घंटे चली इनकी सर्जरी, जिसमें हमने हार्ट का पर्दा बनाया और फिर बाईपास भी किया इनमें और राइट नाउ ही इज़ एब्सोल्युटली स्टेबल। हमने हॉस्पिटल की शुरुआत करी थी, हमारे इरादे यही थे कि लोगों का जो ट्रीटमेंट की जब ज़रूरत होती है वो वापी में ही मिल सके और इनको अहमदाबाद की, बड़ौदा की, सूरत की, बॉम्बे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि अक्सर वहाँ जाते जाते ही लोगों का एकदम मतलब बीमारी जो है फैल जाता है या और भी बीमार हो जाते हैं और शायद उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। आज हमें ये कहते हुए आनंद है कि मेरे ख्याल से हमारे जो सपने थे, जो इरादे थे, जो उम्मीदें थी, पूरे हो रहे हैं और जैसे हमें डॉक्टर सिंह और डॉक्टर कल्पेश मलिक जैसे डॉक्टर्स हमें मिल गए हैं। हमारी टीम यहाँ डॉक्टर की मेडिकल की बहुत ही अच्छी है, बढ़ते जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं हम लोग, पेशेंट कैपेसिटी बढ़ रहा है हमारे हॉस्पिटल में और मेरे ख्याल से जो मॉडर्न एकदम लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं, जो मशीनें हैं, जो साधनें हैं, हम यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में हम सफल ही हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सबका मदद चाहिए, आप हमेशा मदद करते आए हैं। हम जो काम कर रहे हैं उसको आप हमेशा आप उसको प्रोत्साहन उसको देते रहे हैं और हम चाहेंगे इसी तरीके से आप हमको इनकरेजमेंट करते रहिए और साथ देते रहिए। हम ज़रूर हमारे जितने हमारे सपने हैं हम उसको पूरा कर पाएंगे। अभी हम लोगों का हरिया एलजी रोटरी हॉस्पिटल जैसे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने प्राइमरी केयर से चालू किया था, फिर सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर और एकदम अब हाईएस्ट लेवल सुपर स्पेशलिटी केयर के लिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। इस पे बढ़ते हुए हम लोगों ने जो आखिरी स्टेज रहती है जिसको कि अल्टीमेट कुछ ही हॉस्पिटल्स में जो होते हैं पूरे इंडिया में, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट ये तीनों ही चालू करने जा रहे हैं
प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। लाइसेंस के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशंस दे दिया है, डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी हो चुका है। तो अगले में भी 6 मंथ्स के अंदर हम ये तीनों ट्रांसप्लांट यूनिट चालू करेंगे। साथ ही साथ हमारा ऑलरेडी जो कैंसर केयर सेंटर जो है उसमें ऑलरेडी ऑपरेशंस वगैरह ये सब तो हो ही रहे हैं, और उसमें जो रेडिएशन थेरेपी है उसकी जो बहुत महंगी मशीन आती है वो भी हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं। वो भी सब ये सब मिलके आपको अगले 6 महीने में ये सब सेंटर्स हम लोग यहाँ चालू करेंगे, जिसकी वजह से कि लोकल लोगों को वापी के लोगों को, आसपास के लोगों को किफ़ायती दर पे ये सब ट्रांसप्लांट सर्जरीज वगैरह यहाँ हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि ये सर्जरीज अभी खाली बड़े मेट्रो सिटीज़ में ही होती हैं। अब जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट का ले तो गुजरात में केवल अहमदाबाद में ही होता है, और वहाँ भी हर एक साल में 8 से 10 ऐसे ऑपरेशन से ट्रांसप्लांट के हो रहे हैं। तो पूरे गुजरात में हमारा ये सेकंड सेंटर होगा। इसी तरह ट्रांसप्लांट के भी अहमदाबाद में होता है, नडियाड में होता है। यही 2 मेन सेंटर्स हैं, और बाकी हम लोगों का भी सेंटर अभी चालू हो जाएगा। तो गुजरात में इस तरह से ये सब लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट के ऑलरेडी 3-4 सेंटर्स हैं। हमारा 4था या 5वां सेंटर ये भी हो जाएगा। पर हम लोग जो है इसको ट्राई कर रहे हैं कि पब्लिक की साथ में सेवा भी हो, तो काफ़ी इसके रेट्स वगैरह भी काफ़ी हम लोग कॉम्पिटिटिव किफ़ायती रखेंगे, जिससे गरीब लोगों को भी, और ये सब हम फैसिलिटीज़ उनको भी देंगे जो ESIS पेशेंट्स हैं, आयुष्मान में, महायोजना में, इस सब में कवर्ड हैं। उनको भी हम ये फैसिलिटीज़ देंगे, जिनको कि एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और पूरा उनको ट्रांसप्लांट जो है ट्रीटमेंट फ्री में हो जाएगा। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। संघ प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के 65वें जन्मदिवस पर प्रदेशों में विविध कार्यक्रमों का हुआ था आयोजन। दमन पुल दुर्घटना की 18वीं बरसी पर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। दादरा नगर हवेली के मसार टूटूएस प्लाश नामक कंपनी में 22 साल के युवक ने की खुदकुशी। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।